Okay, so now you can see here, right? Uh, Testosterone we had already discussed in our previous class, right? So after testosterone, our next topic of discussion, this is related to progesterone, right? Progesterone also one of the important steroid. Progesterone also one of the important steroid. Now, what about progesterone? Before that, we need to discuss about their structure. First of all, what is the structure of progesterone? This is topic of our discussion today class. Then we will discuss about terpenoid. What is terpenoid? You can see this is actually progesterone, right? After our discussion on testosterone, next one is steroid. This is progesterone. So you can see the main source of hormones in corpus luteum, but it is also found in placenta, pregnancy, right? The main point is this hormone required during pregnancy in female cases, right? What about the structure? What about the structure of compound? You can see this is the structure of compound, right? Here alpha beta unsaturated carbonyl compound, and then you can see here C double bond O and CS3, right? 1, 2, 3, 4, right? 4 cycle. You can see here 4 cycle, very simple, right? Same like other steroid, right? There are 4 cycle. First hexa, then hexa, then hexa, and then pentacycle. What about general formula of this compound? This is general formula of this compound, C21H30O2, right? This is general formula of this compound, right? So now, first of all, we should clear about importance of our steroid, right? So what is importance of progesterone? This hormones required during pregnancy in female case, right? It's found in our placenta, corpus luteum also, right? And this is their general formula. So what are the important point related to this? Normally these rings are exist in all compound. Important thing is alpha beta unsaturated carbonyl compound. First important thing, this is about alpha beta unsaturated carbonyl compound. And second important thing, you can see acyclic ketone, right? Second important thing, that is acyclic ketone. So these two important part, rest part same, right? There is no problem related to rest of the part, because rest part same in all cases. Hari Negi, mic off kariye beta apna, right? So you can see here, right? So these 4 ring as it is, right? 2 methyl groups, same in case of cholesterol also. Cholesterol में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होती है, 2 methyl ring होती है. 2 methyl ring there is 2 methyl ring, right? 1 methyl ring at this position and second methyl ring at this position. And other important thing is alpha beta unsaturated carbonyl compound, right? And यहाँ पे acyclic ketone, right? So this is important point related to progesterone, which is very important steroid, which is very important steroid. अब इसके बाद आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप. सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है या नहीं है, बिकॉज हियर most important groups are keto group. Most important groups are keto group. The presence of keto group, right? How do we confirm? By formation of dioxin. So you people already know when our ketone react with hydroxylamine, then they convert into oxim, right? So oxim, synthesis of oxim clear about their 2 carbonyl group, right? उसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं या 2 कीटो ग्रुप हैं. ये कैसे करके कंफर्म होता है, जब इस कंपाउंड की हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन होगी एंड देन दे कन्वर्ट इनटू डाइऑक्सिम, राइट? डाई मींस 2 ऑक्सिम्स को बनाएगा. इट मींस वहां पे 2 कीटो ग्रुप, राइट? प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड 2 कीटो ग्रुप. हाउ डू वी कंफर्म? देयर आर 1 डबल बॉन्ड, वहां पे एक डबल बॉन्ड है. कैसे करके कंफर्म करेंगे? तो व्हेन वी ट्राई टू सैचुरेट दिस कंपाउंड, जब हम इस कंपाउंड को सैचुरेट करने की कोशिश करेंगे, तो देन द कंपाउंड एब्जॉर्ब 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. ये कंपाउंड क्या करता है, जब आप इसको एक सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, तो ये कंपाउंड आपके 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट? दिस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. व्हाई? बिकॉज एक तो इसका डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा
और 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये तो सिंपल एडिशन रिएक्शन हो सकती है यहाँ पे, राइट। और यहाँ के लिए कीटो ग्रुप के लिए आपको क्लेमेंसन रिडक्शन करना पड़ेगा, राइट। तो मेनली ड्यूरिंग रिडक्शन प्रोसेस और एडिशन प्रोसेस दे एब्जॉर्ब 3 molecule of hydrogen confirm about 2 carbonyl group and 1 double bond present in our progesterone, right। तो हमारे प्रोजेस्टेरोन में एक डबल बॉन्ड और 2 कीटो ग्रुप होते हैं। ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है क्योंकि ये कंपाउंड क्या करता है, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग addition and reduction process, right। so this is basic point related to you can see about progesterone. Now after that, tetracyclic compound, you people already know. For that what we need to do, right? So very simple point, right? For that what we need to do, hydrocarbons, right? What is formula of your progesterone? C21H36. When your प्रोजेस्टेरोन कंप्लीटली सैचुरेटेड, जब आपका प्रोजेस्टेरोन कंप्लीट सैचुरेटेड हो जाता है, जब इसमें से आप क्या कर दोगे, दोनों कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन कर लोगे और आप डबल बॉन्ड को एडिशन रिएक्शन से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दोगे, तो देन इट कन्वर्ट इनटू C21H36। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, C21H36। और इट इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड। ये क्या होता है, टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला होता है। एंड इट फॉलो जनरल फॉर्मूला ऑफ टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड विच इज CnH2n-6, जो क्या होता है, CnH2n-6 होता है, राइट। तो इस तरह से ये जनरल फॉर्मूला जो होता है टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड का, उसे फॉलो करता है। उससे हमें पता चलता है कि आपका जो कंपाउंड है, प्रोजेस्टेरोन है, ये टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड है, राइट। तो प्रोजेस्टेरोन इज अ टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड। हाउ डू वी कंफर्म इट? इट इज कंफर्म when we convert that compound into a saturated compound। जब हम इस कंपाउंड को कंप्लीट सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, तो देन इट कन्वर्ट इनटू C21H36। आप देख सकते हो ये किस में कन्वर्ट होता है, C21H36 में, जो फॉलो करता है CnH2n-6 को, राइट। और CnH2n-6 किसके लिए होता है, टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड के, राइट। तो इन दिस वे वी कैन कंफर्म about tetracyclic nature of this compound, right। tetracyclic nature you people already know, that is basic requirement for steroid। steroid के लिए ये क्या होती है, basic requirement होती है, right। now presence of alpha beta unsaturated ketone, we people already know in the structure of progesterone, alpha beta unsaturated ketone, because conjugated क्या है, alpha beta कार्बोनिल ग्रुप है, कंजुगेटेड अल्फा बीटा कार्बोनिल ग्रुप है, उसके बेसिस पे आप कह सकते हो, राइट, इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, राइट। 4-5 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, 4 and 5 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड, राइट। एंड थर्ड पोजीशन पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका, कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये आपको पता ही है, दिस इज थर्ड पोजीशन वेयर कार्बोनिल ग्रुप, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, राइट। So this is called alpha beta unsaturated ketone। This is called alpha beta unsaturated ketone। And you people already know about photochemistry also, right। photochemistry के बारे में भी आपको पता है, right। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में भी पता है, right। लैम्डा मैक्स वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, राइट। लैम्डा मैक्स वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है जब आपका कंपाउंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है, राइट। पहला तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, एन पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। एन पाई स्टार ट्रांजिशन होता है जो विजिबल रीजन में होता है। एंड नेक्स्ट, बिकॉज अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, राइट। तो जो एनर्जी की इंटेंसिटी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज वेरी वेरी लो, राइट। एंड इट गिव a characteristic peak in visible region, right। based on that peak you confirm about alpha beta unsaturated ketone exist in our progesterone। इससे आपको ये पता चल जाता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो सेंसिटिव टुवर्ड एल्कलाई, एल्कलाई के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी ये एल्कलाई से रिएक्शन कर देता है, राइट। बेस से रिएक्शन करता है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग क्या है, बिकॉज कीटोनिक ग्रुप है एट पोजीशन थर्ड एंड इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप, शो कंफर्म्ड बाय यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा, बिकॉज दिस group
give a specific peak in UV region और in visible region में, because n pi star transition भी है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप भी है, तो इसलिए ये स्पेशल क्या देता है, पीक देता है वहां पे, राइट। Now after that, what about the next point? Presence of C double bond OCH3, acyclic, right? ये acyclic कीटोन है, राइट। एक तो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, राइट, वो आपने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा से क्लियर कर दिया कि आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड जो है और एक कार्बोनिल ग्रुप जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड टाइप का, राइट। ये तो आपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता कर दिया, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक पीक आएगी आपके यूवी स्पेक्ट्रा में, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें दो कार्बोनिल ग्रुप, पहले से ही हमने कंफर्म कर दिया कि देयर आर टू कार्बोनिल ग्रुप, इट इज ऑलरेडी कंफर्म। वन कार्बोनिल ग्रुप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड टाइप एंड सेकंड कार्बोनिल ग्रुप एसाइक्लिक कीटो ग्रुप। सेकंड जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एसाइक्लिक कीटोन है। हाउ डू वी कंफर्म दैट? तो हेलोफॉर्म, और हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है दैट इज अ बेस्ट रिएक्शन फॉर एसाइक्लिक कीटोन। अगर एसाइक्लिक कीटोन होगा तो ही वो हेलोफॉर्म को बनाएगा, राइट। तो व्हेन योर प्रोगेस्ट्रॉन react with halogen in presence of a base like sodium hydroxide, right, so then they convert into a solid compound, and that solid compound is called हेलोफॉर्म, राइट। तो वो हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन से देयर इज ए साइक्लिक कीटोन आल्सो, राइट। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आप प्रोग्रेस्ट्रॉन को लेते हैं तो उसमें आपको स्पेसिफिक जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप की पीक है वो दिखाई देती है, राइट। तो उससे आपको एक कार्बोनिल ग्रुप किस टाइप का है वो पता चल जाता है, और दूसरा कार्बोनिल ग्रुप आपका एसाइक्लिक कीटोन है वो कैसे पता चलता है, जब आप उसका हेलोफॉर्म रिएक्शन कराते हो, व्हेन यू डू देयर हेलोफॉर्म रिएक्शन। एंड व्हाट वी नीड फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो यू पीपल ऑलरेडी नो, वेरी सिंपल रिएक्शन, व्हेन प्रोगेस्ट्रॉन रिएक्ट विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ base, right, then they convert into a solid compound and that solid compound is haloform। वो solid compound क्या होता है, हेलोफॉर्म होता है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि सेकंड कार्बोनिल कंपाउंड और कीटो ग्रुप इज एसाइक्लिक इन देयर नेचर, वो एसाइक्लिक नेचर का, राइट। तो एक ये भी आपको क्लियर हो जाते हैं। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट पोजीशन ऑफ कीटोनिक ग्रुप, इसके बाद बात करेंगे कि पोजीशन। एक तो आपको पहले क्या कंफर्म करना पड़ता है, चाहे आपका टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे ओएस्ट्रोन हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे आपका कोई भी एसिड हो, राइट, बाइल एसिड हो, राइट। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर में क्या देखना पड़ता है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कितने डबल बॉन्ड हैं, कितने उसमें रिंग्स हैं, ये कंफर्म करनी पड़ती है। आफ्टर दैट, राइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है व्हाट अबाउट देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन क्या है। तो नाउ द पॉइंट कम, once we clear about number of carbonyl group, about number of double bond, right, about number of rings, right, after that then we go at next level and then we clear about their position also, right। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, एक बार हम क्वांटिटी देखेंगे किसकी कितनी कितनी क्वांटिटी है, और उसके बाद हम क्वालिटी चेक करेंगे कि कौन किस किस पोजीशन पे है, उस हिसाब से उसका अपना क्या होगा, इफेक्ट होगा। नाउ व्हाट अबाउट हाउ डू वी कंफर्म द पोजीशन ऑफ कीटोनिक ग्रुप, तो यू कैन सी वेरी सिंपल रिएक्शन, प्रोग्रेस्ट्रॉन व्हेन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रोग्रेस्ट्रॉन जब क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है RMgX से, तो देन दे कन्वर्ट इनटू, यू कैन सी हियर, टर्सरी एल्कोहल। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 एंड 3 कार्बन है, राइट, एंड 4 क्या है, OH ग्रुप है। तो दे कन्वर्ट इनटू टर्सरी एल्कोहल, राइट, एंड व्हेन दे रिएक्ट विद Se, राइट, तो देन दे कन्वर्ट इनटू दिस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, तो वो इस टाइप के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा 3-methyl cyclopentaphenyl में, 3-methyl cyclopentaphenyl में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो बिकॉज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है,
सो 4-5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, एंड 4 और 5 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, राइट। तो सो व्हेन दे रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो ये जो कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड होगा ये बहुत ज्यादा एक्टिव होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका टर्सरी एल्कोहल में, राइट। And after that, if they react with selenium, right, so then they convert into 3-methyl cyclopentaphenanthrene, 3-methyl cyclopentaphenanthrene, right. And when they convert into 3-methyl cyclopentaphenanthrene, जब वो 3-methyl cyclopenta, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगी कि जो कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन है दैट इज थर्ड, राइट। तो थर्ड पोजीशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप और कीटो ग्रुप कंफर्म ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिएक्शन, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. Now after that, next, that is a most important part, that is about how do we synthesize. Now the point come, how do we synthesize our progesteron from cholesterol, और cholesterol कैसे करके progesteron में convert होता है when they required inside our body, किस तरह से convert होता है या हम किस तरह से बना सकते हैं cholesterol से आपके progesteron को. तो जब एक बार आपका structural इंटरप्रिटेशन हो जाता है, स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस, देन वी गो एट नेक्स्ट लेवल. उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं एंड देन वी डिस्कस अबाउट देयर सिंथेसिस, राइट. मिथाइल ग्रुप की पोजीशन, अगर आपको उसमें मिथाइल ग्रुप की पोजीशन क्लियर करनी है तो आप कैसे करके क्लियर करोगे उसकी पोजीशन को, उसकी पोजीशन को आप वैसे ही क्लियर करोगे जैसे कि कोलेस्ट्रॉल में आपने 2 एंगुलर मिथाइल ग्रुप की पोजीशन को क्लियर किया था. साइड चेन, हाउ डू यू क्लियर अबाउट साइड चेन? साइड चेन को कैसे क्लियर करोगे? कोलेस्ट्रॉल. तो कोलेस्ट्रॉल इज ए स्टैंडर्ड कंपाउंड. कोलेस्ट्रॉल आप कह सकते हो एक स्टैंडर्ड कंपाउंड है जिसके बेसिस पे जो भी स्ट्रक्चर में किसी भी स्टेरॉइड की दिक्कत आ रही है तो वो स्ट्रक्चर को आप क्या कर सकते हो, उसकी हेल्प से क्लियर कर सकते हो. किसी भी ग्रुप की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोलेस्ट्रॉल को बेस बना करके उस ग्रुप की पोजीशन और उस ग्रुप के बारे में बता सकते हो, राइट. बिकॉज यू कैन यू नो कोलेस्ट्रॉल इज ए स्टैंडर्ड कंपाउंड, राइट. एंड मैक्सिमम टाइम वी पीपल ट्राई टू सिंथेसाइज आवर स्टेरॉइड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, राइट. तो मैक्सिमम टाइम हम ये भी ट्राई करते हैं कि अपने कोलेस्ट्रॉल से ही हम क्या करें, डिफरेंट टाइप्स के जो स्टेरॉइड्स है उनको बनाएं, बिकॉज बेसिक स्केलेटन सबका क्या है, सेम. नाउ यू कैन सी हाउ डू वी सिंथेसाइज. तो सबसे पहले देखिए आप क्या करते हैं. दिस इज योर कोलेस्ट्रॉल. यू कैन सी फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ योर कोलेस्ट्रॉल, राइट. सबसे पहले आपको कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है. आफ्टर दैट AC2O एसिटिक एनहाइड्राइड, आपको एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करना है एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप. किसकी तरह यूज करना, इसे एज ए प्रोटेक्टिव ग्रुप, राइट. एंड Br2 और जो ब्रोमीन है उसको भी यूज करना है एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप, राइट. तो प्रोटेक्टिव ग्रुप ये भी है, Br भी है और AC, बिकॉज यूर प्राइम फोकस ऑन दिस साइड चेन. आपका जो पहला फोकस है वो क्या है, ये साइड चेन को किस में कन्वर्ट करना, इसको C डबल बॉन्ड OCH3 में कन्वर्ट करना. नाउ हाउ इट इज पॉसिबल, अब ये कैसे पॉसिबल होगा, उसके लिए आपको पहले इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा. ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा. तो हाउ डू यू डीएक्टिवेट, कैसे करके डीएक्टिवेट करोगे, इस OH की आप रिएक्शन करा दो एसिटिक एनहाइड्राइड से, राइट. तो योर फर्स्ट स्टेप, रिएक्शन बिटवीन OH एंड AC2O, एसिटिक एनहाइड्राइड की आपने OH से रिएक्शन की और उसके बाद आपने इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया, एसाइल ग्रुप, राइट. O यहां पे OAC, राइट. इस AC से ये O जो होगा वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, राइट. अब यहां पे रिएक्शन नहीं होगी, राइट. नाउ हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, देन दैट रिएक्ट विद Br2. उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी Br2 से रिएक्शन करानी है, ब्रोमीन से रिएक्शन करानी है. एंड देन यू कैन सी हियर Br एंड Br, ये दोनों पोजीशन पे क्या आएंगे, Br. यहां पे क्या हो जाएगी, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी. वंस दे कन्वर्ट इनटू प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट, राइट, प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो गया. देन नेक्स्ट पॉइंट इज वी नीड टू रिएक्ट दैट विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, राइट, एंड CH3COH, राइट. तो हमें क्या करना है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से एंड CH3COH से एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से इस कंपाउंड की रिएक्शन करवानी,
राइट। तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जो होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ना तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है और ना ही वो वीक ऑक्सीडाइजिंग होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे वीक एसिड यूज किया, एसिटिक एसिड एंड CrO3 का यूज किया, राइट। तो अब क्या होगा, ये पार्ट तो ऑलरेडी प्रोटेक्टिव है, राइट, लेफ्ट हैंड पार्ट इज कंप्लीटली प्रोटेक्टिव। तो देन दे अटैक ऑन दिस साइड चेन, ये क्या करेगा, इस साइड चेन पे अटैक करेगा एंड एट द एंड दे कन्वर्ट दैट इनटू ए कीटो ग्रुप, राइट। तो ये इस तरह से इसको क्या कर देगा, साइक्लिक कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, राइट। इस ग्रुप को रिमूव करेगा और साइक्लिक कीटोन में कन्वर्ट करेगा। How it is possible, right? For that, if you want more explanation, you can think about and you can go at the structural interpretation of कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की जब हमने स्ट्रक्चर की इल्यूसिडेशन की थी, तो वहां पे मैंने बताया था आपको कि ये साइड चेन किस तरह से कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट होती है। पहले हम इस साइड चेन की रिएक्शन करते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से, यहाँ पे एसीटोन निकलता है, फिर हम BW डिग्रेडेशन करते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से बहुत सारे कार्बन क्या होते हैं, 1 by 1 रिमूव होते रहते, राइट। एंड एट द एंड दे कन्वर्ट इनटू साइक्लिक कीटो कंपाउंड, राइट। तो इफ यू वांट कि आप इस रिएक्शन को और इलेबोरेट करना चाहते हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल की रिएक्शन पे जाइए, वहां पे मैंने ऑलरेडी आपको वो डिस्कस किया है, तो बार बार उसको डिस्कस करने की मुझे नहीं लग रहा है कि बार बार रिक्वायरमेंट है। इफ यू वांट यू कैन गो देयर एंड यू कैन सी हाउ दिस साइड चेन कन्वर्ट इनटू कीटो ग्रुप, राइट, और साइक्लिक कीटोन। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिएक्ट दैट विद Zn एंड CH3COH। अब आपने जिंक और CH3COH से उसकी रिएक्शन करानी है एंड देन Zn रिएक्ट विद Br2 एंड दे कन्वर्ट इनटू ZnBr एंड वंस अगेन डबल बॉन्ड कम बैक, राइट। जो आपने डबल बॉन्ड प्रोटेक्ट करके डाइब्रोमो कंपाउंड में कन्वर्ट किया था, वो डाइब्रोमो कंपाउंड वंस अगेन कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, राइट, वो एक बार फिर से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, राइट। आफ्टर दैट नेक्स्ट रिएक्शन यू कैन सी दे रिएक्ट विद HCl, राइट, दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड। उसके बाद वो क्या करेगा, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा। यू पीपल कैन सी दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, राइट, वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा एंड व्हेन दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड देन यू कैन सी यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH एंड CN, साइनोहाइड्रिन। किसमें कन्वर्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइनोहाइड्रिन। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। तो व्हेन carbonyl compound react with HCl then they convert into cyanohydrin, right। after that phosphoryl chloride के साथ रिएक्शन करवाएंगे, right, POCl3 के साथ एंड देन वाटर मॉलिक्यूल विल रिमूव आउट, ये OH और यहां से H, right, H2, क्योंकि यहां से तो निकल नहीं सकता है बिकॉज आप देखिए 1 2 3, राइट, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन डिफिशियंसी है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, राइट। तो सो 1 हाइड्रोजन विल रिमूव आउट फ्रॉम दिस पोजिशन, इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा बिकॉज इस साइड से तो पॉसिबिलिटी है नहीं, 1 2 3 4 चारों के चारों साइड से कार्बन है, देयर इज नो 1 हाइड्रोजन, वहां पे कोई भी एक हाइड्रोजन नहीं है, राइट। तो इसलिए क्या होगा, ये OH यहां से निकलेगा और H यहां से निकलेगा, H2O यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा and then they convert into unsaturated cyano compound, right। तो इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये ACN यहाँ पे आएगा, CN यहाँ पे आ जाएगा, राइट। नाउ आफ्टर दैट यू कैन सी उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी, सिंथेसिस में यही इंपॉर्टेंट होता है, स्टेप टू स्टेप आपको रिएक्शन को याद करना पड़ता है। मैंने पहले ही कहा इसके लिए प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट का फॉर्मूला यूज किया जाता है, जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतनी ज्यादा रिएक्शंस याद रहेंगी, राइट। तो नेचुरल प्रोडक्ट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैंने जैसे कहा डेली ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट, आधा घंटा आप जरूर नेचुरल प्रोडक्ट को दीजिए, हमेशा थोड़ा थोड़ा रिएक्शन लिखते रहिए और एक दिन आने पे आपको पता भी नहीं चलेगा और सारी रिएक्शंस आपको बाय हार्ट रहेगी, कोई रिएक्शन कहीं से भी पूछ लो, राइट। लेकिन ये तभी होगा जब आप थोड़ा थोड़ा करके डेली उसके लिए टाइम देते जाओगे, राइट। तो नाउ वंस दे कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड साइनो कंपाउंड, राइट, एक बार वो अनसैचुरेटेड साइनो कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, देन दे रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यू कैन सी देन दे रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हेन दे रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, देन यू कैन सी, राइट, C ट्रिपल बॉन्ड N,
ये C ट्रिपल बॉन्ड N किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहां पे आपको पता है जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, CH3 माइनस को अलग करता है, इसीलिए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी फेमस फॉर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड, राइट? तो डिफरेंट टाइप्स के एलिफेटिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें कार्बेनाइन देता है, राइट? और जब कभी वो कार्बेनाइन देता है तो बहुत इजीली कार्बन के साथ ऐड हो जाता है। तो आप देखो CH3 कहां पे अटैच हो गया? इस कार्बन पे, बिकॉज बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड की जगह पे क्या आ गया? सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। आप देखिए एंड NMGBr, तो इस तरह से एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट? ये इस तरह का आपका एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। इन सेकेंड स्टेप में क्या होगा? आप देखिए, नाउ देयर इज ए हाइड्रोलिसिस। वहां पे क्या होगी? हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस जब होगा तो H2O क्या करेगा? H2 को नाइट्रोजन को दे देगा। H2 को किसको देगा? नाइट्रोजन को, और O दे देगा कार्बन को, राइट? तो देन दे कन्वर्ट इनटू C डबल बॉन्ड O, देन दे कन्वर्ट इनटू C डबल बॉन्ड O, and you can see here NH2MgBr will remove out as a byproduct, right? तो जो NH2MgBr होगा वो बाई प्रोडक्ट की तरह क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, एंड C डबल बॉन्ड OCH3 formed as here, right? Now after that, next important point, H2 Raney nickel. We use H2 and Raney nickel for reduction of this double bond, right? इस डबल बॉन्ड की रिडक्शन के लिए हम किसका यूज करेंगे? H2 Raney nickel का यूज करेंगे, राइट? तो देन दैट कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड का, उसके बाद ये सैचुरेटेड पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, राइट? देन वी डू देयर हाइड्रोलिसिस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OAC विल कन्वर्ट इनटू OH, OAC विल कन्वर्ट इनटू OH, राइट? तो इस तरह से ये वाला OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा आफ्टर दीज टू रिएक्शन, इन दो रिएक्शंस के बाद, राइट? So once they convert, once between these two carbons single bond, right, and they convert into OH, right? So then there is a very simple, now we do opener oxidation reaction, opener oxidation reaction करेंगे, and then this compound convert into, at this part convert into alpha beta. It is an oxidation, so this part convert into alpha beta unsaturated कार्बोनिल कंपाउंड, राइट? ये पार्ट जो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन यू कैन सी इट इज एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोजेस्टेरॉन। ये एक्चुअली आपका प्रोजेस्टेरॉन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो वेरी सिंपल, यू पीपल नो, राइट? ये बहुत ही सिंपल आपको मैंने बताया किस तरह से आप क्या करते हो, प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस करते हो, किससे? कोलेस्ट्रॉल से, राइट? तो दिस इज द पॉइंट, हाउ डू वी सिंथेसाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, राइट? तो कोलेस्ट्रॉल से प्रोजेस्टेरॉन को कैसे आप सिंथेसाइज करोगे, दिस इज अबाउट दैट, राइट? ये उसके बारे में मैंने आपको बताया, राइट? तो वेरी सिंपल प्रोसेस, राइट? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, राइट? तो इस तरह से द यूनिट ऑफ स्टेरॉइड इज फिनिश, राइट? स्टेरॉइड जो यूनिट वो आपकी कंप्लीट होती है, राइट? तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी नहीं, बड़ी सिंपल सी यूनिट थी, राइट? कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ स्टेरॉइड्स हैं जो कि हमारी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, राइट? उन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर की स्टडी थी कि कैसे कैसे करके आप उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे, राइट, क्लियर करते हो, राइट? किस तरह के फंक्शनल ग्रुप है, राइट? किस तरह की ओके, आई एम ऑडिबल? सुनाई दे रहा बेटा? ओके, राइट। तो ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप पीपीटी विजिबल है आपको क्या? इज पीपीटी विजिबल फॉर यू पीपल? नो सर। नो और यस? ओके, थोड़ा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही बेटा, ठीक है ना? दिस इज बिकॉज ऑफ दैट, राइट? एंड विद इन 5 मिनट द link will expire, we will rejoin with same link, right? तो after 5 मिनट लिंक एक्सपायर होगा, हमें फिर से रिज्वाइन करना है सेम लिंक के साथ,
Now, so this is complete today about the unit of steroids, right? Steroids के बारे में आज क्या है वो हमने डिस्कशन किया, right? Now, next point, our next topic of discussion, this is about terpenoid, right? Steroid के बाद next जो unit है वो हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे, that is about terpenoid. Now, what about terpenoid? First of all, it should be clear what is terpenoid. Terpenoid होते क्या? तो टर्पेनॉइड इज ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड, टर्पेनॉइड एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है जिसको हम कहां से डिस्कस करते हैं, इसको कहां पे ये कंपाउंड पाए जाते हैं। तो मेजोरिटी में आप अगर देखोगे, मेजोरिटी में दीज कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन प्लांट्स, राइट। तो मेजोरिटी में ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। बहुत कम केसेस में वी एक्सट्रैक्ट our terpenoid, right? We extract our terpenoid from animal, right? So maximum time we extract our terpenoid from plants, right? So it should be clear, right? So second category of our natural product, this is terpenoid. Now you can see these are a volatile compound. ये जो होते हैं, जो ये स्टेरॉइड टर्पेनॉइड होते हैं, ये क्या होते हैं? volatile compound होते हैं, right? These are volatile substance obtained from पाइन ट्री, राइट। तो पाइन ट्री से एक वॉलेटाइल सब्सटेंस निकलता है, उससे ही हमने स्टार्ट किया था। टर्पिन वर्ड्स जो आया था वो उससे ही आया था कि टर्पिनॉइड और टर्पिन वर्ड जो है वो इस वॉलेटाइल सब्सटेंस विच वी ऑब्टेन फ्रॉम पाइन ट्री, उससे ही हमने कंपाउंड का जो नाम दिया था इसका, वो दिया था टर्पिनॉइड, राइट। उसका नाम क्या दिया था हमने? फिर टर्पिनॉइड दिया था, राइट। तो फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, राइट, फ्लावर्स की जो फ्रेग्रेंस होती है, जो स्मेल होती है, उसमें भी जो मेन और जो इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, दैट इज एक्चुअली टर्पेनॉइड। वो क्या होता है? वो वॉलेटाइल जो मटेरियल निकलता है जिसकी वजह से उसकी एक अच्छी सी महक आती है, वो एक्चुअली क्या होता है? टर्पेनॉइड होता है। तो लीव्स ऑफ प्लांट्स, फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं, प्लांट्स की जो लीव्स होती है, उसमें एक अच्छी सी जो महक आती है, वो किस चीज की आती है? वो एक्चुअली टर्पेनॉइड्स की ही आती है। तो कन्फर जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, कन्फर ट्री होती है जिनको हम कहते हैं, या यूकेलिप्टस ट्री होती है, या पाइन ट्री होती है, राइट। तो उनकी एक अच्छी सी एक आप कहते हो एक अच्छी सी स्मेल आती है, राइट। वो किसकी वजह से आती है? दैट इज एक्चुअली ड्यू टू टर्पेनॉइड, राइट। तो टर्पेनॉइड इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, you can say that you can say that this is very very important natural product, right? It is also very useful, right? Now you can see different types के टर्पेनॉइड होते हैं। There are so many types of terpenoid. फॉर एग्जाम्पल मोनोटर्पेनॉइड होते हैं, सिस्क्वेंट टर्पेनॉइड होते हैं, राइट। मोनोटर्पेनॉइड हो गया, सिस्क्वेंट टर्पेनॉइड हो गया, राइट। ये जो होते हैं, दीज आर वाटर इनसॉल्युबल